Hello students, today we are going to discuss the 11th lecture on human health and disease. Human health and disease. L11. Okay, so what we are going to do in today's lecture, we are going to discuss some of the important concepts and then doubts. While we reading NCERT, we find some doubts in human health and disease that also we are going to discuss today. Okay, so let us begin. So if I draw here one graph, suppose these are the days, on x-axis days are there, on y-axis I am taking antibody concentration, ठीक है. तो यहां पर क्या होगा, इनिशियली फर्स्ट फ्यू डेज लेस एंटीबॉडी प्रोडक्शन, and then followed by more antibody production. So this is what the graph representing primary and secondary immune response. Primary immune response means here why there are less antibody in first few days. स्टार्टिंग में एंटीबॉडी कॉन्सेंट्रेशन कम है, बाद में एंटीबॉडी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है. सो दिस इज व्हाट फर्स्ट exposure to antigen, and this is second exposure to antigen. We all know the concept क्या है इसके पीछे, primary immune response and secondary immune response. What is primary immune response? बताइए. Primary immune response means whenever a person is getting first time encounter with an antigen. A person gets encounter with an antigen for the first time, then it shows primary immune response. It is of low intensity and less antibody production. ठीक है. अगर वही एंटीजन सेकेंड टाइम भी अटैक करेगा, so that time more antibody production because of memory cells. Primary immune response low intensity होती है. Low intensity, number one point. Second point, in case of primary immune response में second point है first encounter with the antigen. So our body produces very little antibodies in first exposure. Whenever the second exposure occur with the same antigen, then a large quantity of antibody production occur. A massive amount of antibody are produced. In case of secondary immune response में बहुत ज्यादा एंटीबॉडी बनते हैं. सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स में हाई इंटेंसिटी बोलेंगे, हाई इंटेंसिटी, लॉट्स ऑफ एंटीबॉडी, करेक्ट. And it is an anamnestic process. Secondary immune response is anamnestic, मतलब associated with memory. It is associated with memory. Why there are lots of antibody production in second exposure? आप देख रहे होंगे फर्स्ट 14 days बहुत ही कम एंटीबॉडी बन रहे हैं. After 14 days
when a person is getting second exposure with the same antigen, then antibody concentration is very high. So what is the reason for this? अगर मैं पूछूं आपको reason क्या है इसका, why second time more antibodies are produced? So you should answer, in secondary immune response what happens? Memory cells are present and those memory cells memorizes the antigen and help in production of antibody in large quantity. समझ गए ना ये प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स? इस टाइप से ग्राफिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, पॉसिबल है. ओके, नोट कर लीजिए पॉइंट. नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिकल सेल एनीमिया से रिलेटेड है. Sickle cell anemia means you know what happens, RBCs become sickle shape. हम क्या बोल रहे हैं? Sickle cell anemic person. Sickle cell anemic person is less prone to malaria बोल रहे हैं. They are having very very less chances of malaria, or you can say they are resistant to malaria भी बोल सकते हैं. They are resistant to malaria. इनको मलेरिया नहीं होता है. कौन से पेशेंट्स को? सिकल सेल एनेमिक पेशेंट्स. दे आर रेजिस्टेंट टू मलेरिया, दे आर लेस prone to malaria. What is the reason? Because RBCs, इनके जो RBCs हैं, because RBCs become sickle shape, ठीक है, become sickle shape, and plasmodium cannot multiply in such RBCs, in such sickle shape RBC, cannot multiply in सिकल शेप आरबीसी. सिकल शेप आरबीसी में प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. सो नॉर्मली आरबीसीज आर बाइकॉनकेव, है ना, नॉर्मल आरबीसीज, दीज आर नॉर्मल आरबीसी. बट इन केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया द आरबीसीज बिकम लाइक दिस, सिकल शेप. इन सच आरबीसीज प्लाज्मोडियम कैनॉट मल्टीप्लाई. You know, all pathogen of malaria, plasmodium, it multiply in RBC. It produces gametocytes in RBC. अब यहां पे क्या हो गया? RBC सिकल शेप हो गए हैं. That means they cannot multiply in sickle shape RBC. This is the question in exemplar problem. NCERT exemplar problem का क्वेश्चन है, याद रखना. सिकल सेल एनेमिक पर्सन इज लेस प्रॉन टू मलेरिया बोल सकते हैं या रेजिस्टेंट टू मलेरिया बोल सकते हैं. ठीक है, ये पॉइंट नोट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एंड सिकल सेल एनीमिया इज व्हाट टाइप ऑफ डिसऑर्डर? सिकल सेल एनीमिया, SCA, सिकल सेल एनीमिया इज congenital disorder. It is congenital disorder. That means it is a disorder which present by birth, right? It is a genetic disorder, gene problem, and it is present by birth. Congenital. It is not contagious disease. It is not spreading to person. It is not contagious. It is congenital है. Congenital disease बोलेंगे इसको. नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पूछा जाता है एग्जाम में, कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन के बारे में. कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन क्वेश्चन क्या है? कॉर्निया ट्रांसप्लांट इन ह्यूमन इज नेवर रिजेक्टेड. दिस इज बिकॉज
cornea transplant is never rejected. Is never rejected. कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन कभी भी रिजेक्ट नहीं होता. व्हाट इज द रीजन फॉर व्हाई कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन इज नेवर रिजेक्टेड? तो उसका रीजन क्या लिखेंगे? दिस इज बिकॉज कॉर्निया आर avascular. Cornea are avascular. Avascular means no blood supply. If there is no blood supply, then there is no T lymphocytes or antibody. No blood supply. Cornea जो है anterior part of the eyeball है, and it is the transparent part of the eyeball. This is like this. ये cornea होता है. Correct? ये eyeball है. यहां पर लेंस है, and this lens is held in correct position with the help of ciliary body, and from the ciliary body arises a muscle called iris muscle. कौन से मसल हैं यहां पर? iris. This is the iris muscle. और ये रहा lens, and this is ciliary body. Ciliary body is a muscle, smooth muscle हैं, which are connected to the lens, and they can change the shape of lens, है ना? ये सारी चीजें हम पढ़े हैं 11th में. क्वेश्चन क्या है? कॉर्निया ट्रांसप्लांट नेवर रिजेक्टेड. किडनी ट्रांसप्लांट कभी कभी रिजेक्ट हो सकता है, लीवर ट्रांसप्लांट रिजेक्ट हो सकता है, बट कॉर्निया ट्रांसप्लांट कभी भी रिजेक्ट नहीं होता. इट इज 100% सक्सेसफुल कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन. व्हाट इज द रीजन फॉर नेवर रिजेक्टेड? तो आप बोलेंगे कॉर्निया avascular. कॉर्निया वो पार्ट है ह्यूमन आईबॉल का जहां पे ब्लड सप्लाई नहीं है, विच इज नॉट हैविंग ब्लड सप्लाई, सो देयर इज नो टी lymphocytes और बी lymphocytes. राइट? एंड यू नो ग्राफ्ट रिजेक्शन आकर बिकॉज ऑफ टी lymphocyte. जब टी lymphocyte ही नहीं रहेंगे वहां पर, दैट मीन्स दे आर नेवर रिजेक्टेड. तो कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन हमेशा सक्सेसफुल है. ओके, नाउ वन मोर थिंग. ग्राफ्ट क्या होता है? ग्राफ्ट मतलब क्या है? ग्राफ्ट मीन्स एनी ट्रांसप्लांटेड टिश्यू और ऑर्गन. ग्राफ्ट का मतलब क्या है? Any transplanted tissue or organ is called graft. Maybe kidney transplanted or skin transplanted or cornea transplanted. So graft में भी types है ना? Autograft, allograft and xenograft. ऑटोग्राफ्ट मीन्स, ग्राफ्ट का मतलब समझ गए ना पहले? ट्रांसप्लांटेड टिश्यू और ऑर्गन, इट इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेड. इसको बोलेंगे हम ट्रांसप्लांटेड टिश्यू और ऑर्गन, इट इज कॉल्ड ग्राफ्ट. अब ग्राफ्ट में कितने टाइप हैं? 3 टाइप्स: ऑटोग्राफ्ट, अल्लोग्राफ्ट, xenograft. व्हाट इज ऑटोग्राफ्ट? व्हेन the transplanted tissue is from the body of same person. Transplantation of tissue from one part of the body to another part of the body of same person. As in case of skin burn patients. Skin burnt patients में क्या करते हैं? Skin is transferred from one part to another part of the body. For example, अगर किसी की skin hand पे बर्न हो चुकी है तो उसके लेग की स्किन निकालकर यहां पर लगाएंगे. सो दिस इज ऑटोग्राफ्ट. स्किन बर्न पेशेंट्स में ऑटोग्राफ्ट करते हैं. अल्लोग्राफ्ट का मतलब क्या है? इफ ट्रांसप्लांटेड टिश्यू और ऑर्गन इज फ्रॉम अनदर इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज. फ्रॉम अनदर इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज. अनदर इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज. एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में किडनी ट्रांसप्लांटेशन करे. सो दिस किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसप्लांटेशन?
अल्लोग्राफ्ट। क्या बोलेंगे? अल्लोग्राफ्ट बोलेंगे। जीनोग्राफ्ट क्या है? जीनोग्राफ्ट मीन ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू और ऑर्गन फ्रॉम वन एनिमल टू अनदर एनिमल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज करने वाले हैं ये। जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग्स होते हैं, उनके टिश्यू ऑर्गन दूसरे इंडिविजुअल में, दूसरे स्पीशीज में ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड जीनोग्राफ्ट। ठीक है, सो ग्राफ्ट क्या है ये याद रखेंगे हम। ओके, नेक्स्ट अल्जीमर्स डिजीज, सब लोग सुने हैं अल्जीमर डिजीज। What happens in Alzheimer disease? Alzheimer is caused due to what? Alzheimer disease is caused due to deficiency of neurotransmitter. Alzheimer's disease is caused due to deficiency of acetylcholine neurotransmitter. Acetylcholine neurotransmitter. ठीक है, so what is the normal neurotransmitter? Acetylcholine. So whenever you are thinking, you are giving reason, that is all because of transmission of nerve impulse, right? अब अल्जीमर डिजीज में क्या है, एसिटाइलकोलाइन कम प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट लॉस ऑफ मेमोरी के चांसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस बार जो है अब हम एक मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन ले लेंगे और उसको करेंगे। ठीक है, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन। कॉलम 1 अमीबियासिस डिप्थेरिया, कॉलम 1 अमीबियासिस डिप्थेरिया। ठीक है, कॉलेरा, एंड डी इज सिफिलिस। कॉलम 2 1 2 3 4, चलिए बताइए क्या क्या आ रहा है यहां पर कॉलम 2 में। एक है ट्रिपोनिमा पैलिडम, दूसरा है यूज ओनली स्टेरलाइज फूड एंड वाटर। फर्स्ट वन इज गिवन ट्रिपोनिमा पैलिडम, ट्रिपोनिमा पैलिडम use only sterilized food and water. It's sterilized food and water. And third one DPT vaccine, DPT vaccine है oral rehydration therapy, ओरल रिहाइड्रेशन थेरापी। चलिए बताइए, मैच द फॉलोइंग करना है आपको। ये अमीबियासिस हुआ है सपोज, तो आप क्या करेंगे इसमें से? अमीबियासिस, यू नो इट इज ट्रांसफर्ड, अमीबियासिस इज ए प्रोटोजोआन डिसीज विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम fecal matter of infected person to the food or water by the vectors like housefly. Housefly, they carry the disease causing agent from the fecal matter of infected person to the drinking water or food. तो इसलिए अमीबियासिस से अगर बचना है तो यूज ओनली स्टेरिलाइज फूड एंड वाटर, दैट मीन्स बॉइल्ड वाटर, बॉइल्ड फूड, अच्छे से कुक करे हुआ फूड अगर खाएंगे तो उसमें अगर अमीबियासिस के पैथोजन भी होंगे तो उनकी डेथ हो जाएगी। सो यूज ओनली स्टेरिलाइज्ड, बॉयल करे हुआ, कुक करे हुआ फूड खाएंगे। डिप्थेरिया के लिए हम बचने के लिए डीपीटी वैक्सीन देंगे। डीपीटी इज आल्सो कॉल्ड ट्रिपल वैक्सीन। डीपीटी इज गिवन फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम 3 डिजीजेस। एक तो है डिप्थेरिया, डी फॉर डिप्थेरिया,
P for pertussis. Pertussis मतलब whooping cough है. T for tetanus. So डिप्थेरिया से बचने के लिए DPT वैक्सीन. कॉलरा में क्या करेंगे? कॉलरा पेशेंट इज हैविंग एक्सेसिव डिहाइड्रेशन, कंटिन्यूअस ओमेटिंग हो रहे हैं, तो इसलिए जो है इसको ORS देंगे, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन देंगे, ओरल रिहाइड्रेशन थेरापी बोलेंगे इसको. ठीक है. एंड सिफिलिस इज ए बैक्टीरियल डिसीज. सिफिलिस एक बैक्टीरियल डिसीज है, तो इट इज कॉज बाय द पैथोजन ट्रिपोनिमा पैलिडम. ठीक है, चलिए. ओके, नोट कर लिए. चलिए अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वन. यहां पर मैं आपको कुछ स्टेटमेंट दे दूंगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करिए. हाँ, करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट. फाइंड आउट करना है आपको करेक्ट स्टेटमेंट. Barbiturates causes relaxation. Barbiturates causes relaxation and euphoria. दूसरा है LSD causes hallucination. कॉजेस हेलुसिनेशन, ये दूसरा स्टेटमेंट है. थर्ड स्टेटमेंट, ओपियम स्टिमुलेट नर्वस सिस्टम एंड कॉजेस हेलुसिनेशन. ओपियम कॉजेस स्टिमुलेशन ऑफ नर्वस सिस्टम. और डी क्या है, देखिए डी स्टेटमेंट इज गिवन, मॉर्फिन लीड्स टू morphine intake leads to interfere in the release of dopamine. So here, out of these four options, you are going to identify the correct statement. करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे, बारब्यूट्रेट्स कॉजेस रिलैक्सेशन एंड कॉजेस यूफोरिया. यूफोरिया कौन से ड्रग में होता है? वो यूफोरिया इज कॉज इन कोकेन ड्रग, नॉट बारब्यूट्रेट्स. बारब्यूट्रेट्स के बारे में आप क्या जानते हैं, बोलो. बारब्यूट्रेट्स आर गिवन टू द पेशेंट्स हु आर हैविंग मेंटल इलनेस, डिप्रेशन, इंसोम्निया, पेशेंट जिनको नींद नहीं आ रही है, उनके लिए है बारब्यूट्रेट्स. तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया. एलएसडी कॉजेज हेलुसिनेशन, दिस इज एग्जैक्टली यहां पर करेक्ट है. एलएसडी कॉजेज हेलुसिनेशन. व्हाट इज एलएसडी? लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलामाइड. एलएसडी के बारे में आप थोड़ा सा लिख ली भी, यहां पर एलएसडी के बारे में लिख लो. एलएसडी इज प्रोड्यूस्ड बाय ए फंगस. LSD is produced by a fungus and the name of the fungus is Claviceps. Claviceps बोल के एक फंगस है जो LSD बनाता है. LSD is produced by a fungus called Claviceps. तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. थर्ड स्टेटमेंट, opium stimulation. Opium causes stimulation, wrong. It is not a stimulant. ओपियम ड्रग्स, ओपियोइड ड्रग या मॉर्फिन है, ये डिप्रेसेंट का काम करते हैं, स्टिमुलेशन का काम नहीं करते. सो दैट्स व्हाई सी ऑप्शन का रॉन्ग है. मॉर्फिन इनटेक लीड्स टू इंटरफियर इन द रिलीज ऑफ डोपामाइन. व्हाट इज डोपामाइन? इट इज ए न्यूरोट्रांसमीटर एंड दिस न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज इन एक्साइटमेंट. और ये डोपामाइन इंटरफियर इन द रिलीज ऑफ डोपामाइन बोलते कोकेन ड्रग लेना चाहिए, नॉट मॉर्फिन. दैट्स वाई करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है देख लीजिए आप. बी स्टेटमेंट करेक्ट है. नेक्स्ट,
और एक बात आप जरा सा अच्छे से नोट कर लीजिए, बेंजोडायस्पाइन, benzodiazepines also given to the patient, benzodiazepine, barbiturates, they are given to the patients who are having mental illness, depression और इंसोम्निया पेशेंट्स को देते हैं। तो बेंजोडायस्पाइन का एक एग्जाम्पल दो बोल तो आप बोलेंगे बेंजोडायस्पाइन का एग्जाम्पल है वैलियम, बेंजोडायस्पाइन का एग्जाम्पल है वैलियम, वैलियम ड्रग, ठीक है। बारब्यूट्रेट्स, बेंजोडायस्पाइन, these drugs are given to which patients? इंसोम्निया पेशेंट, जिनको नींद नहीं आ रही है। These drugs, benzodiazepine, barbiturates, take the patient to the deep sleep. नींद आ जाती है इसको खाने के बाद। Barbiturates और benzodiazepine are given to the patients who are having mental illness, depression, जिनको नींद नहीं आ रही है, और insomnia, sleeplessness पेशेंट्स को देते हैं ये। And what is the example of benzodiazepine? Valium, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट, ओके। तो अभी हम जो है यहां पर नेक्स्ट थोड़ा सा रिवीजन करेंगे ड्रग्स। ड्रग्स के बारे में हम क्या पढ़े, देखिए ड्रग्स में बहुत सारे टाइप्स हैं। ड्रग्स के 4 कैटेगरीज हैं, जैसे स्टाइमुलेंट हैं, स्टाइमुलेंट आते हैं ड्रग्स, डिप्रेसेंट आते हैं, ड्रग्स आर आल्सो बिलोंगिंग टू द कैटेगरी डिप्रेसेंट। ओपिएट एनाल्जेसिक्स हैं, opiate analgesics, and one more, hallucinogens. There are 4 category of narcotic drugs जो ब्रेन पे अफेक्ट करते हैं। साइकोट्रॉपिक ड्रग्स, मूड अल्टरिंग ड्रग्स आर कॉल्ड नार्कोटिक ड्रग्स, एंड दोज नार्कोटिक ड्रग्स के 4 टाइप दिख रहे हैं यहाँ पे। स्टाइमुलेंट, स्टाइमुलेंट क्या होता है भाई, एग्जाम्पल कैफीन है। So these stimulant they give excitement, ठीक है। And depressant, depressant का एग्जाम्पल बोलिए, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डिप्रेसेंट इज हेरोइन, हेरोइन इज ए डिप्रेसेंट। ओपिएट एनाल्जेसिक, ओपिएट भी रहना और पेन किलर भी रहना चाहिए। एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय एनाल्जेसिक, पेन किलर। तो मॉर्फिन जो है पेन किलर का भी काम करता है, एंड इट इज ओपिएट आल्सो। हेलुसिनोजेंस का बेस्ट एग्जांपल है एलएसडी, एंड हाई डोसेज ऑफ कोकेन इज आल्सो कॉजिंग हेलुसिनोजेंस। अब मेरा क्वेश्चन ये क्या है यहां पर, विच टेस्ट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट इलीगल यूसेज ऑफ ड्रग बाय ए पर्सन, विच टेस्ट is conducted, which test is conducted to detect illegal use of drugs। अगर कोई पर्सन इलीगल यूज ऑफ ड्रग कर रहा है, कोकेन लेता है या मॉर्फिन लेता है, कैनाबिनॉइड्स लेते हैं, सो विच टेस्ट इज कंडक्टेड, टेस्ट का नाम बताना है आपको, विच टेस्ट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट इलीगल यूज ऑफ ड्रग्स। तो ये जो है टेस्ट का नाम एनसीईआरटी में तो नहीं है, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पूछ सकता है थोड़ा सा। डोप टेस्ट नाम इसका, डोप टेस्ट, डोप टेस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। ओके, एंड विच ड्रग इज कॉल्ड ब्राउन शुगर, ब्राउन शुगर किसको बोलते हैं, इवन दो हेरोइन जो है ब्राउन नहीं रहती, ब्राउन कलर में नहीं मिलती आपको। हेरोइन क्या है, व्हाइट क्रिस्टलीन पाउडर होता है, व्हाइट क्रिस्टलीन ओडरलेस बिटर पाउडर, दैट इज हेरोइन। फिर भी जो है उसको ब्राउन शुगर ही बोलते हैं, हेरोइन इज आल्सो कॉल्ड ब्राउन शुगर।
इसको ब्राउन शुगर से भी पुकारते हैं नाम। ठीक है, तो याद रखिए। कॉलम 1, यहां पर और एक मैच द फॉलोइंग करिए। कॉलम 1 है चरस, स्मैक, कोक, या डी जो है LSD। और यहां पे कॉलम 2 में क्या आ रहा है, देखिए कॉलम 2 में आपको मैच करना है यहां पर पेपेवर, कैनाबिस, फंगस एंड एरिथ्रोजाइलम। तो यहां पर आपको मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक है, चरस क्या होता है? चरस इज ए टाइप ऑफ कैनाबिनॉइड। Charas is a type of cannabinoid and cannabinoids are obtained from the plant Cannabis sativa. Charas is obtained from which plant? Cannabis sativa plant से लेंगे। Smack is also called morphine, तो ये papaver plant से निकालेंगे। Coke is obtained from erythroxylum। LSD is obtained from fungus। याद रखो ये भी, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है बाय गिविंग एग्जांपल्स। नोट कर लीजिए जल्दी से। एग्जाम्पलर प्रॉब्लम के क्वेश्चन हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम बोल के एक बुक है, उसमें से ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन है, द टर्म हेल्थ इज डिफाइंड इन मैनी वेज, द मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ? डेफिनेशन ऑफ हेल्थ पूछा है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक में। व्हाट इज हेल्थ? वी नो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज गिवन डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एज टोटल वेल बीइंग, फिजिकली, मेंटली एज वेल एज सोशली। तीनों तरीके से ठीक रहना चाहिए, फिजिकली, मेंटली, सोशली। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक में, द ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर कॉल्ड, disease causing agents are called pathogens. So who has given the definition of health? WHO, World Health Organization. Pathogen क्या है पता है आपको? Disease causing agent is called pathogen. It may be bacteria, virus, protozoa और a fungus, क्या भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल टेस्ट दैट इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड। टाइफाइड की डायग्नोसिस में हम कौन सा टेस्ट करते हैं? डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर टाइफाइड। सारे क्वेश्चन करा रहा हूं, देखिए मैं आपको सबसे पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराया स्टार्टिंग में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, फिर डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस। नाउ एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन कर ले रहे हैं हम। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर टाइफाइड, व्हाट इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर टाइफाइड? सबको मालूम ही होगा, वाइडाल टेस्ट। वाइडाल टेस्ट करते हैं, ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर टाइफाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिजीजेस आर ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। इन द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई इन्फेक्शियस डिजीजेस। यहां पर एक लिस्ट बना के दिया है, वो आइडेंटिफाई द इन्फेक्शियस डिसीज पूछ रहा है। Identify the infectious diseases. Fourth one, identify infectious diseases. ठीक है, तो मैं चलिए लिस्ट दे देता हूं आपको। फर्स्ट वन इज कैंसर हियर, सेकेंड वन इन्फ्लुएंजा, थर्ड वन एलर्जी,
फोर्थ वन स्मॉल पॉक्स। देखिए सबसे पहली बात यहां पे, कैंसर इज नॉट इन्फेक्शियस डिसीज। सबको पता है कैंसर इज नॉट इन्फेक्शियस डिसीज, इट इज नॉन इन्फेक्शियस डेडली डिजीज बोल के पढ़े हम। इट इज नॉट स्प्रेडिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कैंसर इज नॉट स्प्रेडिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट इज नॉट इन्फेक्शियस डिसीज। इन्फ्लुएंजा, फ्लू, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ये जो है इन्फेक्शियस डिसीज है। व्हाट अबाउट एलर्जी? एलर्जी क्या है बताइए आप? Allergy is not infectious disease. Allergy is specific for one individual. One person is particularly allergic towards a particular allergen. कुछ लोग डस्ट से एलर्जिक हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ऑल ह्यूमंस आर एलर्जिक टुवर्ड्स डस्ट. So allergy is not a communicable disease, it's not a infectious disease. Smallpox, it was infectious disease, now it is completely eradicated. अब तो eradicate हो चुका है. So what is the answer here? 2 and 4 they are infectious disease. 2 and 4. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन जरा सा ट्विस्टेड है, सारे पॉइंट्स नोट भी करना है आपको, ठीक है? चल नेक्स्ट, द स्पोरोजॉइड दैट कॉज इन्फेक्शन. क्वेश्चन कैसा है देखिए जरा. स्पोरोजॉइड्स दैट कॉज इन्फेक्शन, that cause infection when a female Anopheles mosquito bites a person being sporozoid that cause infection when a female Anopheles mosquito bites a person being are formed in बोल के पूछा है. स्पोरोजॉइड का फॉर्मेशन कहां होगा? स्पोरोजॉइड्स का फॉर्मेशन कहां होगा ऐसा पूछ रहा है. स्पोरोजॉइड दैट कॉज इन्फेक्शन कॉमा when a female Anopheles mosquito bites a person being are formed in, कहां पर बनेंगे ये? स्पोरोजॉइड का फॉर्मेशन कहां होगा? देखिए स्पोरोजॉइड्स का फॉर्मेशन जो है मस्कीटो के इंटेस्टाइन में या मस्कीटो के गट में बोल सकते हैं आप. क्वेश्चन ये नहीं पूछा जा रहा यहां पे वेयर स्पोरोजॉइड्स आर स्टोर्ड. स्पोरोजॉइड्स आर स्टोर्ड इन सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो, ये सबको पता है. स्टोर्ड इन सलाइवरी ग्लैंड, फॉर्म्ड इन इंटेस्टाइन ऑफ मस्कीटो. इंटेस्टाइन ऑफ मस्कीटो, आपको एक लाइन याद दिला दूं, जब हम प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल पढ़ रहे थे, सो वी हैव सीन गैमेटोसाइट्स ऑफ प्लाज्मोडियम, मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट ऑफ प्लाज्मोडियम आर फॉर्म्ड इन आरबीसी ऑफ ह्यूमन, and those male and female gametes are ingested, are taken by the female Anopheles mosquito. एक मस्किटो आके बाइट किया था और गैमेट्स अंदर ले लिया था, राइट? एंड फर्टिलाइजेशन कहां हुआ था? उसके मस्किटो के गट के अंदर हुआ था. आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हाट हैपेंस? स्पोरोजॉइड्स आर फॉर्म्ड. स्पोरोजॉइड्स आर फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सो दैट्स व्हाई इंटेस्टाइन ऑफ मस्किटो लेना चाहिए. कंफ्यूजिंग था ये क्वेश्चन because many of the students may think sporozoid का formation salivary gland में होगा, ऐसा सोचेंगे बहुत सारे स्टूडेंट. लेकिन सुन लीजिए आप, sporozoids are stored in salivary gland बोलना है. sporozoids are stored in salivary gland formed in intestine of mosquito या gut of mosquito भी बोल सकते हैं आप. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिजीज चिकुनगोनिया इज ट्रांसमिटेड बाय. चिकुनगोनिया is transmitted by
ट्रांसमिटेड पूछा है, कॉज बाय नहीं पूछा। ट्रांसमिटेड बाय, आंसर इज एडिस मस्कीटो। एडिस मस्कीटो ट्रांसफर चिकनगुनिया वायरस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। नॉट ओनली चिकनगुनिया, इवन एक और आता है येलो फीवर। येलो फीवर, चिकनगुनिया एंड डेंगू, they are transmitted by Aedes mosquito. Next, many diseases can be diagnosed by observing the symptoms in the patient. Which group of symptoms are indicative of pneumonia? क्वेश्चन पूछा है, यहां पर जो है ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन है, एक पेशेंट को डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन है, फीवर है, चिल है, कॉफ है, हेडेक है। ये निमोनिया के हो सकते हैं क्या सिम्टम? एलिमिनेशन करेंगे तो बेस्ट रहेगा। निमोनिया के सिम्टम मालूम करना है, ठीक है, निमोनिया के सिम्टम। अब यहां पे फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है जरा देखिए, फीवर है, चिल है, कॉफ है, हेडेक है, ठीक। दूसरा ऑप्शन क्या बता रहा है देखिए, कॉन्स्टिपेशन है, अब्डोमिनल पेन है, कॉन्स्टिपेशन है, अब्डोमिनल पेन है, अब्डोमिनल पेन है, क्रैम्प्स हैं। तीसरा ऑप्शन है नाजल कंजेशन है, नाजल कंजेशन, होआर्सनेस, होआर्सनेस, ठीक है, कॉफ है, कॉफ है यहां पर भी। नेक्स्ट है हाई फीवर, वीकनेस, स्टमक पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड कॉन्स्टिपेशन। हाई फीवर है, हाई फीवर है, कॉन्स्टिपेशन है, लॉस ऑफ एपेटाइट है। सो दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हाउ टू सॉल्व, निमोनिया का सिम्टम कौन सा है बोल के पूछा। सो यहां पे बेस्ट एलिमिनेशन करना। आप सेकेंड ऑप्शन इफ यू रीड, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, ये अमीबियासिस डिसीज का सिम्टम है ना। नाजल कंजेशन, होआर्सनेस, नाजल कंजेशन, ब्लॉकेज ऑफ नोज, ये तो कॉमन कोल्ड होता है, नहीं होता ये भी। हाई फीवर, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये टाइफाइड है। सो राइट आंसर यहां पे फर्स्ट ऑप्शन ही बनेगा, फीवर है, चिल है, कॉफ है, हेडेक है। ओके, चलिए नेक्स्ट, कैंसर कॉजिंग जीन्स आर कॉल्ड। कैंसर कॉजिंग जीन्स को आप क्या बोलेंगे? ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, कैंसर कॉजिंग जीन्स। कैंसर कॉजिंग जीन्स शुड बी कॉल्ड, कैंसर कॉजिंग जीन्स शुड बी कॉल्ड एज ऑन्कोजीन्स। क्या बोलेंगे? ऑन्कोजीन्स। द नॉर्मल पर्सन आर हैविंग विच जीन्स? नॉर्मल पर्सन इन हिज सेल्स हैव प्रोटो ऑन्कोजीन। नॉर्मल पर्सन में प्रोटो ऑन्कोजीन होते हैं, बट इन्फेक्टेड, यानी तो आप बोलेंगे जो नॉर्मल पर्सन है प्रोटो ऑन्कोजीन है, बट आफ्टर म्यूटेशन दोस प्रोटो ऑन्कोजीन्स बिकम ऑन्कोजीन्स। तो ऑन्कोजीन्स कैसे बनते हैं? म्यूटेशन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन्स। प्रोटो ऑन्कोजीन के अंदर म्यूटेशन होने से ऑन्कोजीन्स बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, नाइन्थ क्वेश्चन बोल रहा है, इन मैलिग्नेंट ट्यूमर द सेल्स proliferate, grow rapidly and move to other parts of the body to form new tumor. This stage of disease is called. In malignant tumor the cells proliferate and spread to other parts of the body. In a malignant tumor, in malignant tumor सेल्स proliferate मतलब सेल डिवाइड होते हैं, डिवाइड होकर, डिवाइड एंड स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी।
दिस कंडीशन इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे बोलिए? So there are two types of tumor, benign tumor, malignant tumor. Benign tumor are confined to a particular area. Benign tumor एक particular part में होता है जो spread नहीं होता, that is benign tumor. Malignant tumor are those which are spreading. Malignant tumor वो हैं जो spread हो रहे हैं from one part to other part of the body. This condition is called metastasis. मेटास्टासिस बोलेंगे उसको, मेटास्टासिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। व्हेन एन अपेरेंट हेल्दी पर्सन, व्हेन an apparently healthy person, दिखने में पूरा हेल्दी है वो, healthy person is diagnosed as unhealthy by a psychiatrist, The reason could be क्या हो सकता है रीजन? हेल्दी को अनहेल्दी बताया जा रहा है यहां पर। दिखने में बिल्कुल ठीक है, उसको टेस्ट किए, आरबीसी काउंटिंग, डब्ल्यूबीसी काउंटिंग, हीमोग्लोबिन, नो टाइफाइड, नो निमोनिया, दिखने में बिल्कुल हेल्दी है वो, अपेरेंटली। सो उसके दिखने में एकदम ठीक है, वो एकदम हेल्दी है, और उसको बताया जहां पे अनहेल्दी बाय ए साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट बोल रहा है टेस्ट करने के बाद उसके ऊपर, पेशेंट के ऊपर बताया जा रहा है यहां पे अनहेल्दी, हेल्दी को अनहेल्दी बताया जा रहा है। द रीजन कुड बी पेशेंट शोज बिहेवियर एंड सोशल माल एडजस्टमेंट, पेशेंट शोज behavioral and social maladjustment। मतलब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में ही ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के, हेल्थ नॉट ओनली मीन्स एब्सेंस ऑफ डिजीज। हेल्थ का मतलब सिर्फ डिजीज एब्सेंट होना नहीं होता, हेल्थ का मतलब मेंटली, सोशली, फिजिकली पूरा ठीक रहना। मेंटली आप थिंक कैसे कर रहे हैं, सोशली आप किसके साथ बात कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ कैसे बात कर रहे हैं, रिलेटिव्स के साथ कैसे बात कर रहे हैं। इफ ए पेशेंट इज लुकिंग कंप्लीटली हेल्दी बट ही इज नॉट हैविंग प्रॉपर बिहेवियर with the society, not having proper behavior with the society, socially is not good, that means he is having disease, उसको डिजीज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक और क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रीजंस फॉर रूमेटॉइड अर्थराइटिस, which of the following are reasons for rheumatoid arthritis? For rheumatoid arthritis के लिए कौन से रीजन हो सकते हैं? अब सुनिए यहां पर, पहला स्टेटमेंट दिया है, एबिलिटी टू डिफरेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ इंक्रीजेस बोल रहा है यहां पर। दूसरा स्टेटमेंट बताया है, बॉडी अटैक सेल्फ सेल्स। थर्ड स्टेटमेंट बताया जा रहा है यहां पे, मोर एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड।
antibodies are produced. Fourth one, ability to differentiate foreign pathogen. Ability to differentiate foreign pathogen from self cells is lost. ये इसमें से ना 4 रीजंस में से कोई 2 रीजन है यहां पर. व्हाट आर द रीजंस? 2 रीजन है इसमें. कौन कौन से रीजंस हैं आप ढूंढ के निकालिए. कौन कौन से रीजन है? फर्स्ट वन, रूमेटॉइड अर्थराइटिस कौन से टाइप के डिजीज है पहले ये बताइए. रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वेयर पर्सन्स ओन एंटीबॉडी अटैक ओन बॉडी सेल्स. पर्सन के खुद के एंटीबॉडी खुद के ही सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं. दैट्स व्हाई रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी बोलते हैं, जस्ट लाइक मायस्थेनिया ग्रेविस भी. So our immune system is having ability to recognize who is self and who is non-self. हमारे खुद के बॉडी सेल्स सेल्फ हैं और कोई बाहर से बैक्टीरिया आ रहा है, दैट इज कॉल्ड नॉन सेल्फ. आवर इम्यून सिस्टम, इफ इट इज वर्किंग प्रॉपरली एंड आइडेंटिफाई हु इज सेल्फ एंड हु इज नॉन सेल्फ, देन देयर इज नो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. राइट. फर्स्ट स्टेटमेंट बता रहा है एबिलिटी टू डिफरेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ इंक्रीजेस. गलत, इंक्रीजेस नहीं बोलना है, डिक्रीजेस. क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है बताइए. रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ओन बॉडी एंटीबॉडीज अटैक ओन बॉडी सेल. मतलब यहां पे एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश सेल्फ एंड नॉन सेल्फ डिक्रीज बोलना चाहिए, तभी तो वो एंटीबॉडीज अपने खुद के ही सेल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. दूसरा, बॉडी अटैक सेल्फ सेल्स, ये सही है. मोर एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस, जरूरी नहीं है मोर एंटीबॉडीज ही प्रोड्यूस होना चाहिए. मोर एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन केस ऑफ सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स. यहां पर नहीं, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है. एबिलिटी टू डिफरेंशिएट फ्रॉम फॉरेन पैथोजन फ्रॉम सेल्फ सेल इज लॉस्ट. फोर्थ वन इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट. एबिलिटी टू डिफरेंशिएट हु इज सेल्फ हु इज नॉन सेल्फ इज लॉस्ट, then it causes autoimmune disorder. अगर आपको क्वेश्चन पूछे when autoimmune disorder occurs, autoimmune disorder कब होगा? Autoimmune disorders are caused when body's immune system fails to recognize self and non-self, then only autoimmune disorder occur. तो यहां पे statement 2, statement 4 are related to the reasons of rheumatoid arthritis. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स इज कॉज्ड बाय एचआईवी, सबको मालूम है. अमंग द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी. नॉट ए मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी. ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी, नॉट ए मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी. कौन से मेथड से एचआईवी ट्रांसफर नहीं होगा यहां पर पूछा है. नॉट ए मोड ऑफ एचआईवी ट्रांसफर. ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड, ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड, शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स, शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स. और थर्ड ऑप्शन है शेकिंग हैंड्स, शेकिंग हैंड्स विथ इन्फेक्टेड पर्सन, विथ इन्फेक्टेड पर्सन. और डी है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट with infected person. So we all know, हमें मालूम है कि एड्स जो है HIV is transferred through body fluids. बॉडी फ्लूइड से स्प्रेड होता है, राइट. ब्लड हो, लिम्फ हो,
या सेमेन हो, बॉडी फ्लूइड से ट्रांसफर होता है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV बोल रहा है यहां पे। इट इज ट्रांसफर्ड थ्रू कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एक पर्सन को एड्स है, उसका ब्लड जो है दूसरे पर्सन को दे देंगे तो डेफिनेटली एड्स ट्रांसफर होगा, तो नॉट ए मोड ऑफ ट्रांसमिशन बता रहा है यहाँ पे। शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल, इससे भी होगा। शेकिंग हैंड्स विथ इन्फेक्टेड पर्सन, दिस इज यहां पर जो है नॉट ए मोड ऑफ HIV ट्रांसफर बोल रहा है, तो सी ऑप्शन इज नॉट ए मेथड ऑफ HIV ट्रांसफ्यूजन। HIV ट्रांसफ्यूजन ऑकर थ्रू कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, शेयरिंग नीडल्स, है ना। वो इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर जो थे, जो वेन्स में इंजेक्शन लेते हैं, इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर्स, they are also having chances of getting HIV. Sexual contact with infected person, infected person के साथ sexual contact करने से भी AIDS ट्रांसफर हो सकता है। So यहां पर C जो ऑप्शन है, shaking hands with infected person, there is no chance of transmission of HIV by just hand shaking with the infected person. AIDS तो नहीं होता वहां पर, क्योंकि AIDS जो है, एड्स कब होगा बोलिए? थ्रू बॉडी फ्लूइड्स। अगर बॉडी फ्लूइड एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा रहे हैं तब जाके जो है एड्स हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मैक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, स्मैक ड्रग, जो स्मैक के बारे में पढ़े हम, स्मैक है, मॉर्फिन है। स्मैक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, स्मैक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम latex of Papaver somniferum, Papaver somniferum से हो रहा है ये। Smack is obtained from Papaver somniferum. Next, the substance produced by a virally infected cell protect all other cells from infection. Interferons, क्या बोलते हैं? Interferons are produced. Interferons are produced from virally infected cells. Interferons are produced from virally infected cells. Virally infected cell which protect all other cells from viral infection. Which protect all other cells from viral infection. समझ गए बात? इंटरफेरॉन ऐसे एंटीवायरल सब्सटेंसेस हैं जो वायरली इन्फेक्टेड सेल से बनते हैं। इंटरफेरॉन्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम वायरली इन्फेक्टेड सेल्स, ओके, they are produced from virally infected cell and they protect all other cells from viral infection, as in case of measles. अरे स्किन डिसऑर्डर है ना, बच्चों में, छोटे बच्चों में स्किन रेड रैशेस होते हैं, मीजल्स में इंटरफेरॉन्स बनते हैं, ओके, एंड दोज इंटरफेरॉन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वायरली इन्फेक्टेड सेल से बनते हैं, वायरली इन्फेक्टेड सेल्स, एंड दे प्रोटेक्ट, इंटरफेरॉन प्रोटेक्ट ऑल अदर सेल्स फ्रॉम वायरल इन्फेक्शंस। तो अभी थोड़े से क्वेश्चन है एग्जाम्पलर प्रॉब्लम के, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम अभी थोड़े से क्वेश्चन है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके। वन मोर लास्ट क्लास ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वी विल डिस्कस, दैट इज अ 12th लेक्चर, आगे पढ़ेंगे हम, उसमें जो है थोड़े से और एग्जाम्पलर प्रॉब्लम क्वेश्चन करेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के डाउट्स भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके। विल स्टॉप हियर, थैंक यू। आज का जो क्लास था इसमें जो है आप मेनली जो फर्स्ट ग्राफ था, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखे हम आज। एग्जाम्पलर प्रॉब्लम के भी ऑलमोस्ट ऑल 70% क्वेश्चन हो गए हैं, रिमेनिंग और थोड़े से क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।